Dear friends, today the Lord is going to revive our hearts. प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर हमारे मनों को पुनर्जागृत करने जा रहे हैं। Every time He speaks to us, we rise up in boldness. जब भी वह हमसे बात करते हम साहस से भर उठते हैं। Let's hear His word from Deuteronomy 6:3. आइए व्यवस्था विवरण 6:3 से उनका वचन सुने। Be careful to obey so that it may go well with you. ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। God stresses obedience here. यहाँ परमेश्वर आज्ञा पालन करने पर जोर देते हैं। And this verse says, if you obey, it will go so well with you and you will increase greatly in the land. और यह पद कहता है, यदि तुम आज्ञा मानोगे तो तुम्हारा भला होगा और तुम देश में बहुत बढ़ोगे। But it's so difficult because we have to obey our parents, obey our elders. लेकिन यह बहुत कठिन है क्योंकि हमें अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा माननी पड़ती है। Obey our pastors, obey our teachers, obey our higher officials. पास्टरों, शिक्षकों और उच्च अधिकारियों की आज्ञा माननी पड़ती है। And we don't like it when somebody is instructing us to do something. और हमें यह पसंद नहीं आता जब कोई हमें कुछ करने का निर्देश We दे। feel like we are a slave to some instruction. हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी निर्देश के गुलाम बन गए हैं। And it doesn't go well with us. और यह बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। But the Lord stresses the importance on obedience. लेकिन परमेश्वर आज्ञा पालन के महत्व पर जोर देते हैं। Why? Because He's the one who has given us those people in our life. क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमारे जीवन में इन लोगों को दिया He has है। given us elders to guide us. उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन देने के लिए बड़े बुजुर्ग And दिए हैं they have a higher vision. और उनकी सोच कहीं अधिक व्यापक है And they have greater experience. और उनका अनुभव भी कहीं अधिक है। And when we follow what they say, और जब हम उनकी बातों का अनुसरण करते हैं we have a shortcut towards rising up in life. तो जीवन में उन्नति का एक आसान रास्ता मिल जाता है। Sometimes we may even exceed them. कभी कभी हम उनसे भी आगे निकल जाते हैं। The one who takes the right counsel is wise सही सलाह लेने वाला ही बुद्धिमान होता है, because it greatly helps you and develops you to become a great person. क्योंकि यह आपको बहुत मदद करता है और आपको एक महान व्यक्ति बनने में सक्षम बनाता है। Sometimes God's instructions comes through them. कभी कभी परमेश्वर के निर्देश उनके माध्यम से आते हैं। So let us value the ones whom God has placed in our life as the elders in our life. इसलिए आइए उन बड़ों का हम सम्मान करें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। In the marriage of Canaan in the Bible, बाइबल में काना के विवाह में there they ran out of wine to serve the people who came for the marriage. वहाँ विवाह में आए लोगों को परोसने के लिए दाखरस कम पड़ गया। And Mary, the mother of Jesus, who was looking after the arrangements, saw this. और यीशु की माता मरियम जो वहाँ की देखरेख कर रही थी ने यह सब देखा। And she said to the servants who were serving wine, उसने दाखरस परोसने वाले सेवकों से कहा, follow all that Jesus tells you to do. यीशु जो कुछ कहे वैसे ही करना। They didn't know that Jesus was a savior. वे नहीं जानते थे कि यीशु एक उद्धार करता है। They didn't know he was a mighty God. वे नहीं जानते थे कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर But है। they followed the instruction of the elderly person Mary, who was in charge. लेकिन उन्होंने प्रभारी बुजुर्ग महिला मरियम के निर्देशों का पालन किया। They trusted her command. उन्होंने उसके आदेश पर भरोसा And किया। when Jesus said, fill the jars with water, it will turn into wine, और जब यीशु ने कहा बर्तनों को पानी से भर दो वह दाखरस बन जाएगा, they would have not understood why we are filling water. तो वे शायद यह नहीं समझ पाए होंगे कि हम पानी क्यों भर रहे But they हैं। obeyed. लेकिन उन्होंने आज्ञा Many मानी। times we don't understand why we are asked to do something. कई बार हम नहीं समझ पाते कि कोई काम करने के लिए हमें क्यों कहा But गया when है। you obey, लेकिन जब आप आज्ञा मानते हो there is a great miracle that comes out of it. तो एक बड़ा चमत्कार उसके द्वारा होता A है। great increase. बहुत बड़ी वृद्धि होती है। When they obeyed, the water turned into wine. जब उन्होंने आज्ञा मानी तो पानी दाखरस में तब्दील हो Even गया। I have been so blessed because of obeying all the opportunities my father had given to me. मुझे भी अपने पिता द्वारा दिए गए सभी अवसरों का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। Even though I didn't like it sometimes, because I said okay, भले ही कभी कभी मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन जब मैंने हाँ I कहा found the Lord using me mightily तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरा उपयोग सामर्थ्य रूप से and किया opening up big platforms. और मेरे लिए बड़े बड़े अवसर खोले। My friends,
मेरे दोस्तों, it is God who gives you this opportunity to obey परमेश्वर ही आपको आज्ञा पालन करने का अवसर देते so that हैं you'll rise up. ताकि आप उन्नति कर सकें। Shall we take it right now? क्या हम इसे अभी स्वीकार करें? Loving Lord, प्रेमी प्रभु, give us an obedient heart. हमें एक आज्ञाकारी मन दीजिए। Help us to humble ourselves. हमें नम्र होने में सहायता कीजिए। Even though we may not understand why, भले ही हम कारण ना समझ पाएं, even though we cannot see the big picture, भले ही हम पूरी स्थिति को ना देख give पाएं, us the grace to obey you. आपकी बात मानने का अनुग्रह दीजिए। Let the right counsel come to your children हे प्रभु, आपके बच्चों तक सही सलाह and पहुंचे let them have the heart to accept it, Lord. और उन्हें स्वीकार करने का मन उन्हें दीजिए। Even the instructions to correct themselves, यहाँ तक कि उन्हें स्वयं को सुधारने के the निर्देश, instructions from their higher officials, अपने अधिकारियों के निर्देश, from their elders. अपने बड़ों के निर्देश भी, Please give us a heart to obey your instructions through them. उनके माध्यम से आपके निर्देशों का पालन करने वाला मन दीजिए। And as your children do it, और जब आपके बच्चे ऐसा करें honor तो them, उनको सम्मानित bless करें, them, उन्हें आशीष दें increase them with godly blessing. और उन्हें ईश्वरीय आशीषों से समृद्ध Let them करें। become great in the land. उन्हें इस धरती पर महान बनने Let your दीजिए। promise come true in their life. उनके जीवन में आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी Thank you हों। for such a heart, Lord. ऐसे हृदय के लिए धन्यवाद In प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Nikki Jane, happy birthday. प्रिय निक्की जैन, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you, Nikki, richly and abundantly for your love for the Lord, and for your faithfulness. We are all richly blessed through you. निक्की, प्रभु के प्रति आपके प्रेम, आपकी निष्ठा और आपके समर्पण के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम सब आपके द्वारा आशीषित हुए हैं। May God bless you according to Psalm 31:19. How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, Lord. भजन संहिता 31:9 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। हे प्रभु, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। Let this good things stored up by God for you be released this year without measure. Let there be peace in the family, spiritual grace and good health. Bless Arhant Jain, Lord, with divine prosperity in the business, and let your life shine in his spirit. Let him have your spiritual grace with good health. इस वर्ष परमेश्वर द्वारा आपके लिए संचित की गई ये सभी उत्तम आशीषें असीम रूप से आप पर बरसें। उनके परिवार में शांति, आत्मिक अनुग्रह और उत्तम स्वास्थ्य उन पर बना रहे। हे प्रभु, अरिहंत जैन को उनके व्यवसाय में ईश्वरी समृद्धि प्रदान करें और उनके जीवन को आत्मिक प्रकाश से भर दें। उन्हें अपनी आत्मिक अनुग्रह और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। Amira and Miriah have a wonderful future. Such beloved children, precious children. Your Holy Spirit's presence, let it be upon them to be empowered to great heights. Good health and spiritual blessings in Jesus' name. अमायरा और मिराया का भविष्य उज्जवल हो। वे दोनों बहुत प्यारी और अनमोल संतानें हैं। हे पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति से उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करें। यीशु के नाम से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और आत्मिक आशीषें मिलें। Amen. God bless you.